गण्यमान्य व्यक्तियों का आना हुआ था। अब उसके रिवर्स ऑर्डर में उनका यहां से प्रस्थान होता है। राष्ट्रपति जी के बाद अब माननीय उपराष्ट्रपति जी श्री सीपी राधाकृष्णन सलामी मंच से कुछ देर में प्रस्थान करेंगे। वंदे मातरम के 150 वर्ष आज के समारोह का मुख्य थीम। Ceremony and tradition giving context to modernity. Today the signs and symbols of national celebration become more meaningful. And as we foreground them, our individual identities take a back seat and responsible nationhood leads the way. And we saw glimpses of that. Across the armed forces, across the civilian performers. And as the dignitaries depart from the saluting base and we conclude yet another Republic Day parade in New Delhi, we would do good to remember that our extraordinary existence as a civilization has withstood centuries of transformation and still stands strong with its uniqueness in place. We are, however, a young republic, still settling in, still adopting, and still adapting. Our strength has always been our ability to embrace and hold different extremes with gravitas and fortitude, with balance and dignity, tradition and modernity, change and continuity, reconciliation and resistance, and of course resilience and fragility. And India's ability to allow space of change in opinions and differences is what gives it the power to sustain and grow from strength to strength. And here applause growing from strength to strength. Everybody has been waiting. This has become virtually tradition now. Prime Minister Narendra Modi, before departing from the venue, goes right up along either side of the enclosures and Kartavya Path to greet people up close, first hand. समारोह का वो हिस्सा जिसकी प्रतीक्षा यहां मौजूद सभी को रहती है। जब प्रधानमंत्री उनके निकट, उनके दीर्घाओं के निकट पहुंचते हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं, यादगार के कुछ और पल उनकी यादों में शामिल, और प्रधानमंत्री कोशिश करते हैं कि वो काफी दूर तक इन दीर्घाओं में जो दर्शक हैं उनके पास जाएं, उनके नजदीक जाएं और उनका अभिवादन स्वीकार करें। And as the Prime Minister slows down to interact with the people, Kartavya Path becomes a canvas of emotion and national pride. Across the majestic boulevard, thousands rise to their feet. Hands waving, eyes searching, hearts racing for a glimpse that many have waited years for. With every wave and folded greeting, the Prime Minister acknowledges the faith of the people seated across Kartavya Path. In that simple gesture lies a powerful connection of trust, respect, and shared destiny. For countless citizens present here today, this is not merely a visual moment. It is an experience that will be remembered for a lifetime, retold to families, preserved in photographs, and cherished in quiet reflection. The excitement visible on these radiant faces here. Children craning their necks, elders offering blessings, tricolors fluttering with pride, speaks volumes of a nation's collective hope. This is leadership, not from a distance, but leadership that reaches out, listens,
and reassures. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से ये प्रयास रहता है कि इस तरह के जो ऐतिहासिक आयोजन हैं और उनमें जो जन भागीदारी है उसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, उसे सुनिश्चित किया जाए। और उसी क्रम में जो दर्शक यहाँ पर कर्तव्य पथ के दोनों दीर्घाओं में उपस्थित हैं, उत्कंठा से प्रतीक्षा करते हैं कि कब माननीय प्रधानमंत्री महोदय उनके नज़दीक आएंगे, उनके साथ उनको सेल्फी लेने का मौका मिलेगा, उनकी यादगार फोटोग्राफ को अपने साथ संग्रहित करने का, संचित करने का अवसर मिलेगा। और यकीनन अपने आप में एक बहुत ही विशिष्ट अवसर होता है एक आम नागरिक के लिए, जब देश का सर्वोच्च नेतृत्व उसके इतने पास हो, उससे इतनी प्रॉक्सिमिटी उनकी बन रही हो, तो अपने आप में उसके व्यक्तिगत तौर पर उस व्यक्ति के लिए एक बहुत ही अविस्मरणीय, कभी न भुलाने वाला ये अवसर होता है। और इन चेहरों पर जो उल्लास है, जो उत्कंठा है, जो उमंग है, वो स्पष्ट देखी और पढ़ी जा सकती है। 77वें गणतंत्र दिवस का भव्य समापन हुआ है परेड का, जहां भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन हुआ, देश की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन हुआ। वंदे मातरम के 150 वर्ष इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह की मुख्य थीम, और साथ ही आत्मनिर्भर भारत, समृद्धि का मंत्र जो बन करके उभरा है, उसका अवलोकन किया देश ने, सारी दुनिया ने। आजादी का महोत्सव हम मना रहे हैं और पिछले ऐसे आप जम्मू कश्मीर में भी बोलिए कि ऐसे प्रदर्शन वहां पर भी होने चाहिए कला का। जी सर, होते हैं वहां पे, क्योंकि कश्मीर तो भारत का स्वर्ग कहा जाता है और पूरा देश वहां पर्यटन के लिए जाता है। जी। कश्मीर कला की भी भूमि है, संस्कृति की भूमि है, तो कश्मीर के अंदर इस प्रकार के भाव अगर दिखाई देंगे तो उसका अपना एक अलग मैसेज होगा। जी। और बहुत अच्छा लगा मुझे आप सभी कलाकारों की प्रस्तुति को देख करके। थैंक यू सो मच। क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया, और उसमें भी इसलिए भी अच्छा लगा कि आप सभी महिलाएं हैं, बेटियां उसमें जब इस प्रस्तुति को प्रस्तुत करती हैं तो बहुत सारे लोगों के आंखों को खोलने वाला होता है ये, है ना। ये प्रगति की प्रतीक होती है। जी। और अच्छा, बहुत सुंदर, अभिनंदन आप लोगों का। थैंक यू सर, हमें भी बहुत अच्छा लगा। अतुल श्रीवास्तव मध्य प्रदेश से। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव मध्य प्रदेश के सागर जिले से। हम लोग बुंदेलखंड का प्रसिद्ध नृत्य बधाई लेकर आए थे। सर, हम इसके पहले भी उत्तर प्रदेश आए हैं। हमने अयोध्या में भी कार्यक्रम किया है, बनारस में भी किया है, प्रयागराज में भी किया है। लेकिन सर, जब से ये बागडोर राम और कृष्ण की आपके हाथों में आई है सर, तो आपका प्रशासन, आपका शासन अद्भुत है सर, अद्भुत। कोटि कोटि प्रणाम। बुंदेलखंड में आप लोगों को परिवर्तन कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ, दे रहा है सर। जो मतलब विकास की जो मतलब बयार चल रही है वो सर बहुत ही जो है प्रेरणादायक है। बहुत सुंदर, अच्छा लगा। लखनऊ में पहली बार आना हुआ? सर, लखनऊ में पहली बार आए और देखा हमने, सब बदल गया, मतलब साफ साफ दिखा सब। पहले पढ़ते थे अखबारों में या टीवी में देखते थे, लेकिन आज आंखों से देख लिया। अच्छा, स्वच्छ, साफ सफाई, अच्छा यातायात, अच्छा प्रबंधन। ऐसे ही हमें अपने शहर को भी, अपने गांव को भी साफ सुथरा बनाने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए। बिल्कुल सर, अगर कलाकार जब ये बात बोलेगा ना तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। जी सर। जब एक सामान्य व्यक्ति बोलता है तो उसके अपने एक दायरा होता है, कलाकार का दायरा बहुत बड़ा होता है। जी सर। कलाकार जब अपनी कला के माध्यम से उसकी प्रस्तुति देता है तो बहुत सारे लोग सुनते हैं, जानते हैं, और इसका लाभ फिर समग्र समाज को प्राप्त होता है। जी सर। चलिए, मध्य प्रदेश से आप आए हैं, महाकाल की भूमि से आप आए हैं। जी। आपका भी मैं और आपके सभी कलाकार साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद सर। श्रद्धा सदवितकर महाराष्ट्र से। सर हाँ, नमस्ते। सर, उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विभाग से हमें ये मौका मिला कि हम महाराष्ट्र की लोक कला का इधर प्रस्तुति करने का,
और हमने यूपी में बहुत जगह प्रस्तुति दी है, जैसे प्रयागराज में महाकुंभ में भी आए हैं, अयोध्या में। आपके कारण ये हुआ है कि हमें ये मौका सौभाग्य हुआ कि अयोध्या में जब राम मंदिर का ओपनिंग हुआ था, उसमें लगातार हमारे 3 अलग अलग लोक कला का, मतलब महाराष्ट्र का लोक कला हम लगातार 3 बार आ चुके हैं, दीप महोत्सव में आ चुके हैं, और बनारस जैसे शहर में प्रस्तुति करके हमें काशी मतलब नदी का हमें मतलब क्या आशीर्वाद मिलने का मौका मिला। और बहुत अच्छा लगता है कि जैसे भारत के अनेक कलाकार है, अनेक भाषा है, जैसे अनेक संस्कृति है, उसमें भारत के अनेक राज्य का एकता देखने का बहुत हमें सौभाग्य है कि हम कलाकार आए हैं महाराष्ट्र? 18 लोग आए हैं। अच्छा, तो यहाँ पे महाराष्ट्र के इन सभी कलाकारों को पहले भी यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ है? हाँ जी सर, कई बार आए। हाँ जी। महाराष्ट्र कहाँ से आप लोग आए हैं? मुंबई से सर। मुंबई प्रॉपर से हैं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। महाराष्ट्र के तो यहाँ काफी लोग रहते हैं, यहाँ पे अलग अलग जगह। अगर आप काशी में जाएंगे तो तमाम घाट मराठा जो है शासकों ने बनाए थे, और भी तमाम स्मृतियां आज भी बनी हुई हैं। और आप लोग आए हैं, अच्छा लगा। यहाँ की रिपब्लिक डे परेड में आप लोगों ने अपना कला का प्रदर्शन, कलाकारों का बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद सर। सिक्किम से जैनम लेप्चा। A very pleasant good afternoon to one and all present out here today. Respected CM Sir of Uttar Pradesh, I, Jainam Lepcha, on behalf of our team Sikkim, would like to say Namaste, sir. Namaste.